So let us discuss about the mechanism of respiration. This mechanism of respiration, it can be studied in different heading. The first one is breathing. The second one is external respiration. We can say external respiration. Third one, internal respiration. And fourth one, the cellular respiration. Cellular respiration. So ये different mechanisms होंगे respiration के. Now respiration, we know that for this cellular respiration process, the organic substance like glucose, it broken down or oxidized into CO2 and H2O, and this is the cellular process that taking place inside the cell requires the mitochondria. Then near about 686 kilocalorie of energy is produced in this process. This energy is utilized for the functioning of different body metabolism, we can say. So यहाँ पर जो इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन आ रहा है, दिस ऑक्सीजन it passing inside our body to the conducting zone of the respiration, और conducting zone से ये गैस जो है रेस्पिरेटरी गैस हम इसे कहेंगे, कंडक्टिंग जोन से ये जो रेस्पिरेटरी गैस है it comes in exchange zone, और exchange zone से it mix with the blood, that is hemoglobin present inside the RBC. It binds the oxygen, and this oxygenated blood, it is transferred to different tissues or cells for performing this type of cellular respiration. Means for transporting this oxygen to each and every type of aerobic cell for performing the oxidation of organic substance, this oxygen transport system, it pass through these different respiratory mechanisms. Like the first one is breathing. This breathing, it allows the exchange of gases between atmosphere and our respiratory canal or our conducting zones, we can say conducting zone. Then this external respiration, no doubt it is again related with exchange of gases between our main respiratory organ, that is lungs, isn't it, and atmosphere. हमारा जो lungs है और atmosphere है, इस lungs में जो exchange of gases होगा, okay, at the level of this alveolus, उसे हम external respiration कह सकते हैं, isn't it? By means of breathing phenomena, air enter or exit outside the body, but by means of external respiration, this air it enter into our respiratory organ, that is the lung, and inside the lung there is exchange. We know that exchange zone, it is start from कहां से, ब्रैंक्यूल से, isn't it? Okay, terminal bronchiole से means respiratory bronchiole से लेकर alveolar तक, it is the exchange zone. This internal respiration, it is related with the exchange of gases, atmospheric gases, and our blood gas, means the gas which is present in our blood, that is deoxygenated blood present inside our lungs, inside our blood. Okay, deoxygenated blood that is present inside our blood, means deoxygenated blood means high concentration of carbon dioxide, low concentration of ऑक्सीजन. ये क्या होता है, इसे हम डिस्कस करना है आगे जाकर. पार्शियल प्रेशर अलग से एक टॉपिक है उसमें. सो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो, और जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर का, वो ब्लड में मिक्स होता है. Carbon dioxide from blood diffused outside into the lung cavity,
and oxygen in lung cavity diffused into the blood or binds with the hemoglobin. That type of process, that is the, we can say, the internal respiration. Okay, and this internal respiration here, यहाँ पर after binding of oxygen with the hemoglobin, it pass to the, कहाँ पर pass होता है, to different tissues or organs or different types of the cell for performing the oxidation of organic substance, that is cellular respiration. ओके, सो ये डिफरेंट तरह के जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म्स है, ओके, उसे हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहला पॉइंट, ब्रीदिंग. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? वी कैन से व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ हियर, it is the process of inhalation or exhalation of air is known as breathing. Breathing यानी क्या होती है? The process of inhalation or exhalation of the air is known as breathing. Inhalation, it is the process of entry of atmospheric gases, or we can say the respiratory gases present in atmosphere into our conducting zone. हमारा जो कंडक्टिंग जोन है, इस कंडक्टिंग जोन के भीतर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस इनहेल हो रही है, उसे हम, एंट्री हो रही है, उसे हम इनहेलेशन कहेंगे. इनहेलेशन मींस द एंट्री ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इनसाइड द कंडक्टिंग जोन. Respiratory gas in the sense, what is the higher concentration of which respiratory gas present in air? Oxygen. Means we can say inhalation of oxygen, okay, entry of oxygen inside the conducting zone, that is the inhalation process. Then exhalation, हमारे बॉडी के भीतर after this cellular respiration, carbon dioxide concentration increase in blood becomes deoxygenated one, and this deoxygenated blood, it releases carbon dioxide outside the body via our conducting zone. उसे हम exhalation कहेंगे. क्या कहेंगे? Exhalation. So this exhalation process, it is the exit of respiratory gases like the carbon dioxide outside the body through the conducting zone. It is known as exhalation process. इसे हम exhalation process कहते हैं. Okay, so this inhalation and exhalation process, it require or it involve the participation of different muscles of respiration और expiration करने वाले जो different जो muscles है, इनका यहाँ पर participation होता है inhalation में और exhalation में. So ये क्या होता है, उसे हमें discuss करना है. Before that, we should know familiar with the thoracic cage. हमें thoracic cage के बारे में जानना होगा. Exhalation क्या होता है, inhalation क्या होता है, और इसमें जो different costal muscles, diaphragm muscles, abdominal muscles, जो भी यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इनके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? thoracic cage क्या होता है? What are the different elements that form the thoracic cage? thoracic cage किसके द्वारा फॉर्म होता है? The thoracic cage क्या होता है? Write down. Thoracic cage, it is formed by, okay, it is formed by different structure. What are that structure? Okay, अगर हम इस तरह से अगर ड्रॉ करते हैं, here suppose thoracic cage, so the chest bone that is present in medial position, okay, जो sternum bone है, it is present dorsal or ventrally. This one is the ventral part. बैक का जो पार्ट है, दैट इज डॉर्सल पार्ट. ओके, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, वेंट्रल है ना, डॉर्सल नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड वगैरह वगैरह आपको पता है कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक. सो हियर, सो स्टर्नम ये कहाँ है? चेस्ट बोन, वेंट्रली सिचुएटेड चेस्ट बोन, दैट इज स्टर्नम से हम कहते हैं. देन पीछे से वर्टेब्रल कॉलम, फ्रॉम बैक साइड से क्या है? वर्टेब्रल कॉलम. Okay, isn't it? Vertebral column T1 up to the T12 vertebrae. Okay, so thoracic vertebrae, they participate in the formation of this thoracic cage. Okay, then अगला point, इस thoracic cage से, इस sternum से जुड़े हुए ribs,
ribs, total 12 pairs of ribs. Okay, from ventrolateral and dorsolaterally covered ribs. Okay, ribs. Then from ventral side the diaphragm. कौन सा? Diaphragm. These part form the complete thoracic cage. ये thoracic cage बनाता है, ये thoracic cavity बनाता है जिसमें हमारे lungs situated रहते हैं. Okay, getting this point? कौन कौन से part? The single sternum, the 12 pairs of thoracic ribs, okay, and the 12 thoracic vertebrae present on dorsally, then single diaphragm situated below the lungs. The lungs, they are, lungs जो होता है, lungs, they are situated over the diaphragm. Diaphragm, it is the muscular part which is containing the radial muscles. Okay, किस तरह के मसल्स होते हैं डायफ्रागम में? डायफ्रागम जो होते हैं इसमें कौन से किस तरह के मसल्स होते हैं? रेडियल मसल्स प्रेजेंट इन डायफ्रागम. And this diaphragm, if you observe this diaphragm, you can see the central tendon. यहाँ पर आपको डायफ्रागम में दिखाई देता है the central tendon. It is present in the diaphragm. Diaphragm, it is dome shape. ये dome shape structure होता है. Okay, so ये जो diaphragm है इसमें एक central tendon होता है और इस tendon से जुड़े हुए सारे ये muscles होते हैं radial muscles. When these radial muscles get contract, जब ये radial muscles contract होते हैं तो वो इस diaphragm को कहां पर खींचेंगे, कहां पर पुल करेंगे? Towards downward direction. और इस तरह से ये diaphragm completely flat हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Flat. When these radial muscles of diaphragm contract, this diaphragm becomes flat. When these radial muscles they relax, then again this diaphragm it becomes dome shape. डायफ्रागम के सेंटर में होती है द सेंट्रल टेंडन और उससे अटैच रहते हैं रेडियल मसल्स. गेटिंग दिस पॉइंट? अगला पॉइंट, अब ये जो सेंट्रल टेंडन जो पार्ट होता है इस सेंट्रल टेंडन पार्ट से 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर इस सेंट्रल टेंडन को पर्स कर एब्डोमिनल कैविटी में इंटर करते हैं. दिस डायफ्रागम इट सेपरेट द thoracic cavity. This is the thoracic cavity. Thoracic cavity from abdominal cavity. Okay, abdominal cavity और thoracic cavity इन दोनों को सेपरेट करने वाला पार्ट है diaphragm, isn't it? So thoracic cavity, in this thoracic cavity we have क्या होता है? The pleural cavity, that is the lungs, the pleural cavity that comprise the lungs. Okay, and the cardiac notch where the pericardium, inside the pericardium cavity heart get situated. So ये क्या है? What is this? These are the different cavities present in our body, in our trunk region. Okay, this pleural cavity, this comprise the pairs of lungs. Then pericardium cavity comprise the single heart. किसी को नहीं दीवार रहता है, अपना ही रहता है. Then abdominal cavity get separated from other upper thoracic and pleural region, okay, by this diaphragm. इस diaphragm की वजह से ये सारी चीजें होती है. Are you getting this point? So ये है different cavities due to this diaphragm. अब ये जो diaphragm होता है इस diaphragm के central tendon से 3 different structure पास होते हैं. ये 3 different structures कौन से होते हैं? एक होती है, okay, you know about the कौन से होंगे? The esophagus, the esophagus, the part of our alimentary canal. Okay, then उसके बाद inferior vena cava. कौन सा? Inferior vena cava और हमारा dorsal aorta, the part of dorsal aorta. Okay, so ये जो 3 different part है वो इस diaphragm को पर्स करते हुए central tendon से ये कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी में इंटर होते हैं. सो कौन से हैं? दीज आर इसोफेगस. कौन से बच्चों? इसोफेगस सिंगल,
then single dorsal aorta, that is the largest artery, you know that. Okay, aorta, dorsal aorta part, then and single, that is inferior vena cava, जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीनेट ब्लड हमारे हार्ट की ओर लेकर आती है, दैट इज इंफीरियर वेना कैवा। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर है वो इस सेंट्रल टेंडन को पर्स कर कर पास होते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस बात को याद रखिए। अगला पॉइंट, सो कम टू दिस thoracic cage. As I told you here, the thoracic cage is formed by the central sternum, its medial sternum, then 12 pairs of thoracic ribs, then the dorsally situated 12 vertebrae, and the lowermost situated diaphragm. It completely cover or form the thoracic cavity. ये thoracic cavity इस तरह से फॉर्म होती है। Getting this point? अब अगला पॉइंट, what are the muscles of respiration? Okay. या फिर what are the different muscles of breathing? ब्रीदिंग के मसल्स कौन से होते हैं? ओके, एक्टिव मसल्स कौन से, मींस एक्टिव ब्रीदिंग किसे कहेंगे, पैसिव ब्रीदिंग किसे कहेंगे, ये पॉइंट्स देखते हैं। सियर, सो जैसे कि हमने आपको बताया थोरेसिक केज किस तरह से फॉर्म होता है। अगला पॉइंट जो होगा, इनमें रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले या फिर ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होने वाले जो मसल्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो उसके बाद हमें डायरेक्टली डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस, द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। ओके, किस तरह से होती है उसे हमें डिस्कस करना है। सो राइट डाउन द हेडिंग, the different muscles participates in the breathing, mechanism of breathing. So now I'm drawing here the one schematic representation for the thoracic cage, the single pairs of the ribs, then sternum. Suppose ये line describe this line, ये वर्टेब्रल कॉलम है, सपोज दिस वन इज वर्टेब्री, देन दिस पार्ट इज द स्टर्नम, द चेस्ट बोन, यू कैन से द स्टर्नम, एस लिखते हैं, और इस स्टर्नम से ये है thoracic ribs. What is this? Thoracic ribs. Okay. What are the different muscles that participates here? The one type of muscles I told you earlier, that is किस तरह के muscles, कौन से muscles? That is the first one, diaphragm. Okay, so यहाँ पर हम diaphragm draw करते हैं. Okay. Okay, so see here, vertebral column, then sternum, ribs. What is this? Ribs. Or this one is diaphragm, dome shape diaphragm, dome shape diaphragm. और यहाँ का जो पार्ट है that is the thoracic cavity. Okay, thoracic cavity, suppose the thoracic cavity. Okay. अब देखिए see here, अब ये जो पार्ट है व्हाट इज दिस? डायफ्रैगम। जैसे हमने आपको बताया सबसे पहले मसल्स होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मसल्स दैट पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। सबसे पहले मसल्स है डायफ्रैगम, डायफ्रैगम मसल, मसल्स ऑफ डायफ्रैगम। ये क्या करते हैं? व्हेन दिस डायफ्रैगम रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, thoracic cavity increase in size. Okay, and air pressure present in lungs, it is lower than atmospheric pressure, so that the atmospheric air easily enter inside the lungs. Okay, isn't it? Easily enter inside the lungs. Okay, so diaphragm जो होता है, इसके रेडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, व्हेन द मसल्स ऑफ डायफ्रैगम गेट कॉन्ट्रैक्ट, जब ये डायफ्रैगम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस समय ये जो थोरेसिक कैविटी है
इस पर प्रेशर होता है क्या? नहीं। ओके, डायफ्रागम का जो प्रेशर होता है वो होता है क्या? नहीं होता है। सो डायफ्रागम क्या होगा? दिस डायफ्रागम इट गेट फ्लैटेन, ये डायफ्रागम फ्लैटेन हो जाएगा, और फ्लैटेन होने की वजह से ये जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, लंग्स की जो वॉल्यूम है, एयर वॉल्यूम, वो बढ़ जाएगी। ओके, but pressure of air as compared to atmospheric pressure is lower. Therefore, to facilitate this one, the air from atmosphere it enter inside the thoracic cavity or inside the lung very easily. ठीक है, मतलब जब डायफ्रागम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रेडियल मसल्स, तब डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट, और इसकी फ्लैट होने से इस लंग्स पर का जो प्रेशर है वो हट जाता है। लंग्स पर कोई प्रेशर होता है क्या एक्टिव? नहीं, वो हट जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो होते हैं उनमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, मगर प्रेशर ऑफ एयर वो कम होता है, जिस वजह से एटमॉस्फेरिक एयर इट इंटर इनटू द लंग। As the pressure of atmospheric air is higher than the pressure of air present inside the thoracic cavity, therefore the air enter inside the lung. Okay, so ये किसकी वजह से हो रहा है? It is taking place due to the contraction of diaphragm and it is known as active nilation. ये active nilation होता है, okay, जिसमें diaphragm muscles participate करते हैं, isn't it? Then अगला पॉइंट, अब व्हाट इज दिस? ये जो हमने जो मसल्स ड्रॉ किए हैं, सॉरी, दीज आर द टू रिब्स। व्हाट इज दिस? ये है रिब्स। अब these ribs they have two different types of intercostal muscles. Ribs को costa कहा जाता है, as they have the hyoid cartilage as their anterior region and that is known as costa. Okay, so इस वजह से ribs को हम क्या कहते हैं? costa कहते हैं। सो ये जो रिब्स है, इन रिब्स के बीच में दो तरह के मसल होते हैं। मींस दो तरह के कॉस्टल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, सो इनके बारे में क्या है? सी, इनके बारे में क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल intercostal muscles. So second type of muscles that participate during the inhalation or exhalation कौन से होते हैं उसके बारे में देखो। Yes, so second one is external intercostal muscles and internal intercostal muscles, intercostal muscles, ठीक है। Then external intercostal muscles they originate from the dorsal surface of upper ribs and attaches with the ventral surface of lower. ओके, ये है अपर रिब्स। इस अपर रिब्स के डॉर्सल सरफेस से ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, कौन से? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। ओके, कहां से? डॉर्सल लोअर सरफेस ऑफ these ribs, upper ribs, and they innervates with the ventral portion of lower ribs. लोअर रिब्स के वेंट्रल पोर्शन से वो आर्टिकुलेटेड रहते हैं, ठीक है, अटैच रहते हैं। अब एक बात हमें बताइए, जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यहां पर अटैच है, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब इस रिब्स के ऊपर और एक रिब्स होगी, ओके, इस रिब्स के ऊपर क्या होगी? और एक रिब्स होगी, और एक छोटा सा पार्ट रह गया बच्चों, थोरेसिक केज में स्टर्नम बोन जो होती है, स्टर्नम, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। कौन सी? कॉलर बोन। ये कॉलर बोन जो है ये एंटीरियर पोर्शन से क्या करता है? थोरेसिक केज बनाता है। स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन मींस इसे हम कॉलर बोन कहते हैं। ओके, यहां से, इजंट इट? ओके, जो स्कैपुलर पार्ट है, पेल्विक गर्डल जो होती है, इजंट इट, और हेड पोर्शन जो होता है, सॉरी, पेक्टोरल गर्डल और दिस हेड पोर्शन से उनको आर्टिकुलेट होने वाली ये हमारी बोन, दैट इज द स्टर्नम बोन, उसे हम कॉलर बोन कहते हैं। तो ये कॉलर बोन जो होता है वो एंटीरियर से थोरेसिक केज को कवर करता है। ये
ये एक बोन रह गई थी, उसे याद रखना, ठीक है। स्टर्नम बोन एट द पेयर ऑफ स्टर्नम बोन इन थोरेसिक केज, ओके, स्टर्नम बोन इन थोरेसिक केज एट दिस पॉइंट। सो अगला पॉइंट देखिए, अब यहां पर इसके ऊपर भी रिब्स होंगे, है ना, और इस रिब से भी जो मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो इसके साथ आर्टिकुलेट होंगे, ठीक है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब ये जो रिब्स होगा, ये जो रिब्स होगा, ये अपवर्ड मूव होगा या डाउनवर्ड मूव होंगे? रिब्स अपवर्ड मूव होंगे या डाउनवर्ड मूव होंगे? ओके, अगर यहाँ पर ये जो इंटरकॉस्टल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब इनकी साइज कम होगी, क्या होगी? कम हो जाएगी। तब ये इस लोअर रिब्स को ऊपर खींचेंगे या नीचे? कहां पर? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड, ओके। इसे अपवर्ड पुल करेंगे, क्या करेंगे? अपवर्ड। और इसके ऊपर वाले जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो इस रिब को कहां पर पुल करेंगे? अपवर्ड, अपवर्ड, क्योंकि सारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, when this external intercostal muscles when they get contract, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, they pull the lower ribs upward, ओके। वो नीचे वाले रिब्स को पुल करते हैं, खींचते हैं, इसे पुलिंग रेस्पिरेशन, इसे पुलिंग इंस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आया? ये इसे पुल करते हैं। when these external intercostal muscles when they get contract, what they form, which type of activity can be seen? उस समय ये जो वर्टेब्रल कॉलम है सियर और ये जो स्टर्नम है, इनके बीच में डायमीटर क्या हो जाए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी? फिर देखिए, इनके कॉन्ट्रैक्शन से ये मसल्स शॉर्ट हो गए, गेटिंग माय पॉइंट? इस वजह से ये जो रिब्स है, दे मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। और जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम इट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेब्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टर्नम इंक्रीज। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने की वजह से थोरेसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होगी, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर उसमें इंटर हो सके। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इस तरह से when this external intercostal muscles it contract, उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है? उस समय ribs they move in upward direction, sternum it move in forward direction, so that the thoracic volume increases, okay, isn't it? Thoracic volume increase हो जाएगी, that is we can say the volume of the gas inside the lungs, okay, वो कम होती है मगर उसके वॉल्यूम बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस जो है कम है, मगर उसके फैलने से यहाँ पर प्रेशर ना होने के कारण लंग्स की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। तो वो आसानी से एटमॉस्फेरिक एयर फिर कहां पर डायरेक्टली इंटर हो जाएगी? एक्टिवली इनसाइड द लंग्स, ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सियर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम मसल, radial muscles of diaphragm, and contraction of external intercostal muscles, what they do, इन दोनों का फंक्शन क्या है? when they contract at that time the thoracic volume increase in size, increase in volume, thoracic volume in get increases, साथ ही साथ जो प्रेशर होता है, प्रेशर over the lungs it decreases, but the atmospheric pressure is higher, so that but the air of the pressure inside the lungs, the air pressure inside the lung, it is lower one, okay। ये कंडीशन आपको याद रखना है, जब ये मसल्स, डायफ्रागम मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस समय क्या होता है? कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है? थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ती है, ओके, प्रेशर ओवर द लंग्स डिक्रीज रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है,
एयर प्रेशर इनसाइड द लंग लो होता है। ये सारे कंडीशंस याद रखने हैं। और फिर ये सारी कंडीशंस की वजह से, ये सारी कंडीशंस होने की वजह से गैस कहां से कहां पर पास होगी, एटमॉस्फेयर से इनसाइड द लंग पास होगी। ओके, सो इस तरह से इन दोनों का ये फंक्शन है। ओके, सो एक्टिव inspiration, it is due to the contraction of these muscles of diaphragm, okay, muscles of diaphragm and external intercostal muscles, okay, इन्हें हम क्या कहते हैं, muscles of inspiration कहते हैं। okay, muscles of diaphragm and muscles of external intercostal muscles, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, muscles of इंस्पिरेशन। ओके, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन या फिर एलिमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन कह सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। अगला पॉइंट, अब थर्ड टाइप ऑफ मसल्स जिसे हम कहेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, इंटरनल intercostal muscle. अब they do not participate in inspiration, ये इंस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, बट दे पार्टिसिपेट इन द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हेल्प करते हैं। isn't it? कहां पर, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ये हेल्प करते हैं। isn't it? एक्सपिरेशन मींस in exhaling the gases, इसके लिए हेल्प करते हैं। सो राइट डाउन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जैसे कि हमने यहां बताया आपको शियर। अब अगला पॉइंट, यहां पर हमने आपको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में बताया। अब इस डायरेक्शन में होते हैं कौन, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ब्लैक क्या नजर आ रहा है, दिस ब्लैक आर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा, जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त रिब्स की डायरेक्शन मूवमेंट की क्या होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। उस समय ये जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम की मूवमेंट कहां होगी, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। आप एक बार इनका ओरिजिन याद रखिए तो आपको समझ में आएगा। ओके, हियर दीस इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम, या फिर इनका पॉइंट ऑफ बेस्ट ओरिजिनेट और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये होता है डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब्स। ओके, सॉरी ये वेंट्रल सरफेस है, सॉरी वेंट्रल सरफेस ऑफ लोअर, they innervates with the dorsal surface of upper ribs। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब इनके जो मसल्स का जो साइज है वो छोटा होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तब जब ये जब ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब इनकी मसल का साइज छोटा होगा, उनकी अटैचमेंट स्ट्रांगली इस लोअर रिब्स के अपर सरफेस पर है, मींस दैट इज ऑन देयर वेंट्रल सरफेस पर है। तब बताओ ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब ये अपर रिब्स नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा, नीचे और भी रिब्स है। When these internal intercostal muscles get contract, at that time the movement of ribs, whether it is taking place in upward or downward, it is taking place in, जोर से बोलिए कौन सा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये जब डाउनवर्ड होगा तब ये जो स्टर्नम बोन है वो आउटवर्ड जाएगा या फिर इनवर्ड मूव होगा, इट मूव इनवर्ड अगेन। सो इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। समझ में आया? ओके, तब उस समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स में होंगे, जब एक्सपिरेशन होता है तब क्या होता है,
जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है उस समय हमारे जो डायफ्रागम मसल्स और दूसरे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दे आर इन रिलैक्स स्टेज, वो रिलैक्स स्टेज में होते हैं। फोर्सफुल एक्सपिरेशन की बात कर रहे हैं हम। ओके, isn't it forceful expiration? The normal expiration, it is the passive type of expiration. No any contraction of muscle is taking place during normal or rest type of expiration. रेस्ट, जब हम रेस्ट में होते हैं उस समय में किसी भी तरह के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते, इसी वजह से उसे हम पैसिव ब्रीदिंग कहेंगे, एक्टिव ब्रीदिंग नहीं कहेंगे। Isn't it? समझ में आया? पैसिव ब्रीदिंग कहेंगे उसे, क्योंकि उस समय किसी भी तरह के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते हैं। हमने आपको जो इंटरनल इंटरकॉस्टल बताया, इसे हमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए बताया। कौन सा एक्सपिरेशन? फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ओके, फोर्सफुली एयर को एक्सपायर करना। ओके, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का काम है। और साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स, कौन से मसल्स? एब्डोमिनल मसल्स। नेक्स्ट वन, फोर्थ मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, मसल्स ऑफ एब्डोमिन। एब्डोमिनल मसल्स का पार्टिसिपेशन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी these abdominal muscles, no doubt, they remain in relaxed stage during inspiration. ओके, नॉर्मल इंस्पिरेशन हो या फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो, उस समय एब्डोमिनल मसल्स दे आर इन रिलैक्स स्टेज। ओके, कब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन ऑफ द एयर। जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना होता है उस समय इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं। Isn't it? Okay? So, इसीलिए इन्हें हम मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन कहेंगे। मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन ड्यू टू देयर कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड abdominal muscles, the forceful expiration of air taking place. Therefore, this internal intercostal muscle and abdominal muscles are known as muscles of expiration. Getting this point? Okay, अब अगला पॉइंट देखिए बच्चों, आप सभी नॉर्मल बैठे हो, ठीक है? सो आपका किस तरह का रेस्पिरेशन हो रहा होगा या ब्रीदिंग हो रही होगी? थोरैसिक हो रही होगी या एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही होगी? किस तरह की? thoracic या फिर abdominal? 25% of the breathing it is of thoracic type and remaining 75 types of breathing it is abdominal type. क्योंकि हम दिन भर हम काम वगैरह करते रहते हैं। ओके, जब हम सोए हुए रहते हैं उस समय भी हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्टिव रहती है। ओके, isn't it? So इस बात को याद रखना है। ओके, so ये जो एब्डोमिनल मसल्स है इसकी वजह से किस तरह से लंग्स पर प्रेशर अप्लाई होता है इसे देखिए। ओके, यू कैन इमेजिन, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमिनल मसल्स, यू कैन फील दैट डायफ्रागम इट pull or it exerts the pressure from visceral part of our abdomen. ओके, विसरल पार्ट जो है, विसरल पार्ट मींस इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे एब्डोमेन में है, जब हम एक्सपायर करते हैं फोर्सफुली उस समय वो डायफ्रागम को ऊपर की ओर क्या करते हैं? ढकेलते हैं, उसे पुश करते हैं। और डायफ्रागम जब ऊपर पुश होता है तब लंग्स पर उसका प्रेशर अप्लाई होता है और फोर्सफुली एयर एक्सपायर होती है। गेटिंग दिस पॉइंट? सो फोर्सफुल एक्सपिरेशन, द एब्डोमिनल एक्सपिरेशन। ओके, थोरैसिक और दूसरा क्या है? thoracic and abdominal breathing, or you can say the respiration, isn't it? So maximum जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ओके, वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उनका जो फिटस होता है वो फोर्स अप्लाई करने के लिए मींस इनेबल होते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिटस को इंजरी हो सकती है। इस वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है, उनका जो ब्रीदिंग होता है वो लैटरल थोरैसिक ब्रीदिंग ही रहता है। बच्चों, ये जो रिब्स होते हैं वो लैटरल भी क्या होते हैं?
स्प्रेड होते हैं लैटरल भी, ठीक है, समझ में आया, मींस अपवर्ड मूव होते हैं तो वो लैटरल भी होते ही है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो इस बात को याद रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें थोरेसिक ब्रीदिंग होती है, क्योंकि एब्डोमेन में फोटस जो होता है अगर वो फोर्सफुल अगर ब्रीदिंग करेंगे, ओके, एक्सपायरेशन करेंगे फोर्सफुली, तो डैमेज होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। इस वजह से वो किस पर डिपेंड रहते हैं जनरली, यस, थोरेसिक ब्रीदिंग पर, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। साथ ही साथ जो एथलीट्स होते हैं उनकी थोरेसिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज कर कर अपने लंग्स को उस काबिल बनाते हैं ताकि वो बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपांड हो सके। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, जितनी ज्यादा एयर की वॉल्यूम कहां पर बढ़ेगी, लंग्स में बढ़ेगी, उतना ज्यादा उस एथलीट्स को या फिर स्पोर्ट्समैन को एनर्जी मिलेगी। गेटिंग दिस पॉइंट? सो हमारी जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है और जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनकी कैपेसिटी जो होती है लंग्स की, ये अलग अलग होती है थोड़ी बहुत, समझ में आया? सो अगला पॉइंट, सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना है। अगला पॉइंट, सो मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन देखिए क्या होता है, उसे हम डिस्कस करवा देते हैं, और साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन भी क्या होता है उसे भी डिस्कस करवा देते हैं। सो यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये समाप्त हो जाएगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द लंग। You should remember about the volume of air, pressure over lungs, contraction of different muscles while considering inspiration or expiration, ठीक है। इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो सीयर, सो यहाँ पर हम एक आपको लैटरल व्यू दिखाते हैं। सीयर, now suppose this diaphragm is in relaxed stage। जब डायफ्रागम रिलैक्स स्टेज में होता है तब ये संभावना होती है, ये कार्डियक नॉच होता है जहां पर हार्ट सिचुएटेड रहता है, कार्डियक नॉच, ठीक है। सो अगला पॉइंट, अब हम आपको इंस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बता दें क्या होता है। सी हियर, ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस, okay, inhaling air inside is known as inspiration, okay, exhaling air outside the body is known as expiration, okay। so inhalation के समय क्या होता है, during inhalation the muscles, radial muscles of this diaphragm, it gets contract so that it becomes flat, diaphragm becomes flat, the pressure over the lungs, it also get decreased, okay, the pressure over the lungs wall also get increased so that lungs, the volume inside the lung increases, okay, and lungs की वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, as the pressure over the lung wall of lungs is not applied by this diaphragm, therefore the volume of air, the volume inside the thorax, it is increased, इससे thorax वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ओके, लंग्स के भीतर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ओके। अगला पॉइंट, अब यहां पर की जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, नाउ हियर इट इज द स्पेस फॉर एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ओके, यहां पर स्पेस है इसके लिए फॉर द एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड द lung as compared to the different pressure, okay, the pressure differences between atmosphere and lungs, ओके, यहां पर ये जो थोरैसिक कैविटी में जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ दिस लंग, इट इज इंक्रीज वन, प्रेशर ओवर द लंग, इट इज नॉट अप्लाइड बाय द डायफ्रागम मसल्स, एंड थर्ड वन, यहां पर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर इज लोअर, एयर प्रेशर कैसा है, लो, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे है, हाई है, okay, higher one, atmospheric means air pressure inside the lung
lower है, but the volume of this thoracic cavity is higher one, means यहाँ पर space for further entry of air is available. यहाँ पर entry of air के लिए space क्या है? Available है. Space means यहाँ पर volume of air can be enter inside. Okay, so ये सारे situation है. So thoracic volume ये low है. सॉरी, thoracic volume ये बढ़ी हुई है क्योंकि लंग्स के भीतर एयर का प्रेशर कम है. सो ड्यू टू दिस द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ द एयर, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ एयर कहाँ ज्यादा है? एयर में. प्रेशर ऑफ एयर कहाँ पर कम है? लंग्स में. सो हमेशा एयर का जो फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है. सो this atmospheric air easily enter inside the lungs. Now these are the conditions during the inhalation process or during the inspiration process. तो inspiration के समय ये सारी चीजें होती है. Okay.